Welcome to DXN RVC YouTube channel, YouTube live channel. We have today our guest speaker, extraordinary lady speaker, wonderful doctor by profession. She has contributed tremendously for the human health by her medical practice, later diversifying into prevention and nutrition and human wellness. Dr. Asma Munir, MBBS, MCPS and FNM, ART, embryology from Australia, PGA from UK, MSc in assisted reproduction from UK. There are long list of her achievements, qualifications. She is a super specialist, if I say, in reproductive health. She has her extraordinary achievements, particularly in establishing IVF centers all over the world, IVF and pregnancy center in Pakistan as well as other countries like Dubai, Bahrain and many other countries. She has specialized in Australian concept of INF Medical Center, SurgMed IVF Center at Lahore, Janin Fertility and Genetic Center, Manama in Bahrain. He has helped as establishing as a consultant many hospitals. He has been practicing for the last 40 years, and that 26 years she has served her experience or knowledge in assisted reproductive health. Her mission mainly on prevention and nutrition, health awareness, publicity or propagation, and she has opened her mind. Here I insist that clearly the allopathy doctors open their mind on holistic medicine or alternative medicine. But today, as you know that world is not able to see the solution for many diseases. Either there are no drugs or no cure. Under these circumstances, all categories of doctors are opening their mind towards anything is there in research, either prevention or cure of disease even by any other sources. She is one of the pioneers in establishing more than 10 IVF centers in the world, including 3 in Pakistan. She got the Wonder Woman Award in 2011, and she has been promoting DXN
and supporting DXN for the last 12 years. He is an asset to DXN because such people are very rare who serve selflessly for the cause of health. Among such hundreds or thousands of doctors we have seen all over the globe, one of them is Dr. Asma Munir. She represented Pakistan in more than 300 national and international conferences on reproductive health. Medical director of 6 IVF center and in and out of Pakistan. First lady diamond of DXN from Pakistan, now double diamond. He has delivered more than 300 lectures in 19 countries on prevention and nutrition. Multiple research papers and articles he has published in her specialties for the past 40 years. And more than anything, I am very proud to introduce her as a part of my team. She is part of our team, DXN team. I am the applied up line ultimately. And whenever I go to Dubai, her love and affection, her humane approach, human problem is really touching our hearts. She is one of the very good, very humble, very simple, serving DXN soldier. I pray God to give her very long life to serve the humanity as a medical professional who diversified into human wellness. Welcome, Dr. Asma Munir from Dubai. Thank you very much. Assalamu alaikum, salam, namaste, sat sri akal, all the people and my DXN father. Welcome to the world of global health. And without father, children are nothing. You know that. So thank you very much for such kind words. I cannot open my eyes in front of you because you have said so much things that I don't know what to say. Just thank you very much. So kind of you. I will try to fulfill whatever expectations are. And thank you, Yogi, for connecting us all together. Welcome to the world of health, wealth, and happiness. And I take this liberty to thank Professor Vasupal, Professor Ratna Vasupal, and my dear Yoginder Vasupal, who has really helped me to meet you all today. And it was my dream to come back to my mother country and to at least you are most welcome, madam. Be there for virtually say, inshallah. So today is one mission which seems to be impossible, but it is no more impossible because you are under the umbrella of DXN. So I will start with the name of Allah the Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. Can I have the first slide, Yogi? After those initial 4 slides. Okay. Before I start, I will take the liberty to thank DXN globally. After Allah subhanahu wa ta'ala and my parents, and then Dr. Lim, DXN UAE, then my father, Professor Vasupal. I really thank you all to giving me this liberty to talk to you. Today, the topic is very, very time consuming, but I will try to summarize it to make you understand. जो लोग हिंदी उर्दू समझते हैं उनके लिए 2 लाइनें
کہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ کی، اپنے ماں باپ کی، اس کے بعد میرے گرو اور میرے ڈیکشن کے باپ یعنی جو پروفیسر وسوپال اور رتنا وسوپال کی اور یوگی کی، جنہوں نے آج یہ موقع دیا. اور اس شکریہ کے ساتھ کہ آج کا جو موضوع ہے وہ وقت کا نازک ترین موضوع ہے، اور اس وقت ہمیں مل جل کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے کیسے لڑنا ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں. تو آئیے پہلے تو تھوڑا سا بات کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ ہمیں ایسا علم دے جو سب کے فائدے میں ہو، اور ایسا عمل دے جو سب کے کام آئے، اللہ کو قبول ہو، اور ایسا رزق دے جو حلال ہو. اس دعا کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ، کیپ آن گوئنگ، فنش دس سلائیڈ. ہم بات کرتے ہیں کہ قوت مدافعت کیا ہے، اور ہماری جو یہ خوبصورت جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معجزاتی جسم. It's a miraculous body which Allah has given us. And when we started this life at the 8 weeks or 10 weeks of pregnancy, we had been given those cells to fight back. یعنی جو ریزسٹنس، جو قوت اوپر والے نے ہمیں دی، جو ہمیں دنیا سے بچا سکتی تھی، دنیا کی بری آفتوں سے بچا سکتی تھی، جراثیم سے بچا سکتی ہے، اور جو ہمیں تمام مورچوں پہ لڑنا سکھاتی ہے، وہ ثبوت جو تھے وہ ہماری 8 مہینے کی زندگی سے شروع ہو گئے. یہ 8 ہفتے سے 8 مہینے اور 9 مہینے سے 40 ہفتے. You stay there on this slide. Don't change the slide now. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قوت مدافعت ہمیں کیسے ملتی ہے، اور ہمارے جسم کو اللہ نے بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی اضافی مدد کے کیسے بیماریوں سے بچایا تھا، اور جس کو ہم نے بیماریوں کے حوالے کر دیا. اب دیکھیے ہماری اسکن سے لے کے اور ہمارے لیور اور ہمارے اسپلین تک ایک لمبی تعداد ہے ان تمام چیزوں کی جن کے اندر یہ حفاظتی سیل یا وہ خلیے موجود ہیں جو ہمیں قوت مدافعت یا امیونٹی دیتے ہیں. So our body is made up of trillions of cells which are being secured by our systems, and these systems, they include our vascular system, they include our somatic system, and they include our lymphatic system, plus the bone marrow which is giving the premature WBC. اتنی خوبصورت سیل لائف ہے. آپ اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھیں اور اس کمرے کی دیواریں ہیں، اس کے اندر لائٹ ہے، اس کے اندر آپ کا ایک دروازہ ہے، اس کے اندر ایک کھڑکی ہے، اور اس کے اندر کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا. بالکل اسی طرح باڈی کے اندر جو سیلز ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اگر وہ خود صحت مند ہیں. اگر کوئی سیل خود صحت مند نہیں ہے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو پڑوسی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یعنی جو برابر میں سیل ہے اور اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو یہ سسٹم جو اللہ نے بنایا اسکن سے لے کے اور آپ کے سسٹمز تک، وہ آپ کی حفاظت اس وقت کرتا ہے جب آپ اپنی غذا کو، اپنے لائف سٹائل کو اپنے لیے دشمن نہ بنائیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کا دودھ ہمیں 2.5 سال تک یہ امیونٹی دیتا ہے اگر ماں کا دودھ اویلیبل ہے، اور آج کی دنیا میں لوگ مدر فیڈ پہ جاتے ہی نہیں. یہیں سے ہماری وہ دفاعی قوت کم ہونا شروع ہو گئی. جب ہماری دفاعی قوت پیدائش سے ہی کم ہے تو پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں بار بار بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان بیماریوں میں کچھ تو فوری بیماریاں ہیں، الرجی ہے، مائلڈ انفیکشنز ہیں، اور کچھ مزی بیماریاں ہیں جو ہماری جان لے لیتی ہیں. اب ہم آج کل پریشان ہیں کہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے، اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی لے لی، اور یہ وہ وائرس ہے جو اپنی کسی اور شکل میں کچھ سال پہلے جو UAE میں، گلف میں، اور اس سے پہلے اسپین میں اسی سے ملتی جلتی وبا کریٹ کر چکا ہے. اسی کووڈ-19 کو جو SARS-2 کی ٹائپ تھی، اب اس نے ہمیں کووڈ-19 کی شکل میں حملہ کیا. اس پر ہم بات کریں گے کہ جب ہم
तमाम थोड़ी सी उन चीज़ों पे जायज़ा ले लें कि हमारे पास कौन से अज्जा ऐसे हैं कि जो इस वक्त हमारे काम आ सकते हैं। तो पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को महफूज कैसे किया जाए, और अगर हम महफूज करेंगे तो डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, और डेली बेसिस पे जब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे तो फिर हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दवाओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और हमें अगर बीमारी टकराती भी है तो हम उससे रिकवर जल्दी हो सके। अगर रिकवरी स्पीडी हो, रिपेयर स्पीडी हो, तो आप बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं। जितना देर आपको रिकवर होने में लगता है उतना ही ज़्यादा आपको डैमेज होता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर आ गई कि भाई क़ुव्वत मुदाफ़अत कैसे काम करती है, क्या होता है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक ऐसे निज़ाम को हिफाजत करने के लिए जो सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा साइंसदानों ने सिर्फ 30 to 40% ही जाना है, ब्रेन से लेके स्किन तक, उसकी हिफाजत करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हमारी तालीम, हमारा अमल अगर चेंज नहीं कर सकी तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कहाँ से शुरू होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सफाई की तरफ जाते हैं। ऊपर वाले की इबादत करने के लिए भी साफ होना पड़ेगा, तो पानी और साबुन, अगर ये दो चीजें जिससे आप अपनी सफाई कर रहे हैं वही साफ ना हो तो फिर सफाई का मतलब सफाई नहीं रह जाती, उल्टा आप उनसे जरासीम लेके अपने आप को उस लाइन में खड़ा कर देते हैं कि अब आप बीमार हो सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे नमूने भी होने चाहिए कि जो साबुन से सही इस्तेमाल उसका हो, सही साबुन हो, और उसके साथ हम अपनी एहतियात कर सकें। क़ुव्वत मुदाफ़अत, फिर दूसरा क़ुव्वत मुदाफ़अत में बैरियर पड़ता है हमारी ग़िज़ा से। हमारी ग़िज़ा अगर हमारे जरासीम को जगह देती है या अब हमें हेल्थ नहीं देती है तो फिर वो हमें बीमारी की तरफ ले जाती है। और जैसा कि हिपोक्रेट ने कहा कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, वरना ये होगा कि मेडिसिन आपको दवा की तरह, ग़िज़ा की तरह खानी पड़ेगी। तो जब यही खाना हजम ना हो तो आंतें बीमार पड़ती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म बीमारी की तरफ चलता चला जाता है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए इस क़ुव्वत को मजबूत करने का तरीका हमें डॉक्टर लिम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई उन ग़िज़ाओं को एक जगह ग्रो करके हम तक उस साइंटिफिक डिटेल्स के साथ पहुंचाया कि जिससे हम अपनी इस इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी बाय टेकिंग द नेचुरल फूड, organic food, in which we should be thankful to Dr. Lim who has provided us these organic food supplements to improve the viability of the cells, to increase the resistance, to increase the repair, and also to have a long, healthy, graceful aging process. तो ये तमाम बातें जब सामने आती हैं तो सवाल पैदा होता है, भाई क्या ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर लिम ने आपको दी। तो डॉक्टर लिम ने, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेड ऋषि मशरूम हम तक पहुंचाया। ये दुनिया का अजीम तरीन मशरूम, मिरेकलस हर्ब, जिसके अंदर मौजूदाती तौर पर कुदरती ऐसी असरात मौजूद थे जिसको आज साइंस की दुनिया इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहती है। 3,500 से ज़ायद मशरूम्स की मौजूदगी में एक किंग की दरियाफ्त बहुत आसान बात नहीं थी, और ये वो किंग था जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मशरूम्स का एक में बहुत बड़ा देवमालाई इसको दर्जा दिया गया। और उस ज़माने में 2,500, 3,000, कुछ कहते हैं 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले बादशाह लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये ऐसी जगह पे उगता था जहाँ आम आदमी अप्रोच नहीं कर सकता था। और इसका काम ये था कि वो उन लोगों की न सिर्फ सेहत की ज़मानत दे बल्कि उनको एक लंबी उम्र बगैर बीमारी के दे, एंटी एजिंग। इस वजह से वो लोग इसको यूज़ करते थे। लेकिन हमारे पास जब ये मिला तो हमें उन तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ मिला, जिसमें तकरीबन 1,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिसका मैं अभी तस्करा भी करूँगी आपसे, कि जो लोगों ने स्टडी करने के बाद इसको ग़िज़ा का हिस्सा बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे पास कम से कम 5-7 अज्जा ऐसे हैं जो आपको
قوت مدافعت کو اتنا اسٹرانگ کر دیں گے, آپ کی امیونٹی کو اتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ کورونا کیا چیز ہے, اس کے آگے ہم کینسر کو بھی پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو ہمارا سب سے بڑا پروڈکٹ گینوڈرما لوسیڈم, یا آپ جس کو رشی کے نام سے جانتے ہیں, RGGL کے نام سے جانتے ہیں, یا آپ اسے لنگزی کے نام سے جانتے ہیں, یونگزی کے نام سے جانتے ہیں, اور تقریباً 23-24 اس کے اور بھی نام ہیں. یہ وہ مشروم تھا ہے جس نے اپنے اندر 412 ایسے اجزاء لیے ہیں کہ جس کی مائنر سی changes into the cell can change the whole body into a different body. جو اس کی افادیت رکھنے والے 3 بڑے کیفیتیں تھیں کہ جنہوں نے جو اجزاء تھے جنہوں نے ہمیں امیون سسٹم پہ کام کیا, ان میں پولیسیکرائڈز, ٹرائٹرپینوئڈز اور گینوڈرک ایسنس. یہ 3 بڑے اجزاء اس کے اندر ایسے ہیں کہ جو ہمیں امیون سسٹم کی طرف ایک بہتری ہمیں نظر آتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ سلائیڈ. اگر آپ دیکھیں تو اس کو دنیا طب نے, یہاں میں نے کچھ آرٹیکلز آپ کو 2005-2006 کے شروع کیے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح کیمیکلی یہ گینوڈرما آپ کے سیلز کو بوسٹ کرتا ہے, ایمونائز کرتا ہے اور پریونٹ کرتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ, چینج دس لائن. یا اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں پر امیونو ماڈولیٹر کا نام یوز کیا گیا, مانیٹری آف امیونو ماڈولیٹر ریسپانس, اینڈ دس اسٹڈی واز ڈن ان 2006. پبمیڈ میں یہ ابھی بھی چل رہی ہے یہ اسٹڈی, اور اس کے اندر ہزاروں پیشنٹس کا ڈیٹا شامل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قوت مدافعت کو ماڈلائز کرتی ہے, جن کی قوت مدافعت کم ہے اس کو بڑھاتی ہے, اور جو باڈی کے اندر چینجز آ رہے ہوتے ہیں اس کو بیلنس کرتی ہے, ڈیٹاکس کرتی ہے. اسی طرح جو خراب سیلز ہیں ان کا خاتمہ کرنے میں باڈی کی ریزسٹنس میں ہیلپ کرتی ہے, اور جینیٹیکلی ان تمام ایپی جینیٹک کوڈز کو ڈائیورٹ کر سکتی ہے جو ایک باڈی کو بیماری کی طرف لے جاتے ہیں. نیکسٹ, نیکسٹ سلائیڈ. اسی طرح اس نے پروٹین انہیبیشن میں اور آپ کی جین تھراپی کے لیے, فنگل انفیکشن کے خلاف, اور اب ہم بات کر رہے ہیں کورونا کی, تو کورونا کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ لنگس کے اوپر جب اٹیک کرتا ہے تو زندگی لے لیتا ہے, اور لنگس ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے, یعنی زندگی لنگس کی وجہ سے, آکسیجن کی وجہ سے آپ کو ملتی ہے, اور آکسیجن کی سپلائی ہی اگر آکسیجن کو نہ پہنچ پائے, کیونکہ جو لنگس کا آخری حصہ ہے جس کو ہم الویولس کہتے ہیں, وہاں سے آکسیجن جو ہے وہ سیلز کے اندر داخل ہوتی ہے, بلڈ کے اندر داخل ہوتی ہے, اور وہ بلڈ کے اندر داخلہ ممکن کم ہو جاتا ہے جب یہ الویولائی انفلیمڈ ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا کورونا, یا کوئی بھی انفیکشن ہو, انفلیمیشن ہو, وہ اس کو وہاں کام نہیں کرنے دیتا. تو یہاں پر ایک چیلنج تھا ریسپیریٹری سسٹم کو, جو کہ گینوڈرما بہت اچھی طریقے سے فائٹ بیک کر سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اسی طرح نیچرل ایڈجوینٹ امیونوتھراپی میں ایک اور اسٹڈی آئی, میڈلائن نے یہ بتایا کہ جو گینوڈرما کا جو ٹرائٹرپینوئڈ کنسٹیٹوئنٹ ہے وہ خود اینٹی وائرل ہے. یعنی ایک طرف تو آپ سیلز کی سوجن کو ختم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آکسیجن کی سپلائی ملے, دوسری طرف آپ خود اس وائرس کو ختم کر سکتے ہیں تھرو گینوڈرما جو آپ کو اٹیک کر رہا ہے. تو یہ سمجھیے کہ ایک ڈبل بیرل گن ہے کہ جو آپ کو قوت بھی دے رہی ہے اور قوت مدافعت بھی دے رہی ہے, غذا بھی دے رہی ہے, وائٹیلٹی بھی دے رہی ہے, اور ریپیئر بھی کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں کسی ایک غذا میں جب ہوں تو اس کو ہم مکمل غذا کہتے ہیں. اور یہ امیونو ماڈولیشن 2000 سے لے کے اور 2020 تک یہ آرٹیکلز آتے چلے گئے اور اپنی پروف دیتے چلے گئے. نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ سلائیڈ. اب یہ دیکھیے کہ میں نے ایک ریفرنس کو لے کے آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں. یہ ریفرنس نومبر 7, 2019 لیٹسٹ آرٹیکل ہے یہ, جس نے یہ کہا کہ جو مطابقت رکھنے والی امیون سسٹم کو صحیح رکھنے والے سیلز ہمارے جسم کے اندر سفید خلیے, میکروفیجز, ان کو ہیلپ کرتا ہے رشی, شٹاکی اور میاٹک کے مشروم. یہ وہی ایک ہی فیملی کے یہ مشرومز ہیں, اور دس اسٹڈی واز پبلشڈ ان 2019. یہ پہلی اسٹڈی ہے جس نے یہ بتایا کہ ایک ڈیفائنڈ مشروم جو ہے
وہ ملا جلا کام کر سکتا ہے اپنی باڈی کے سیلز کے ساتھ, علاوہ اس کے جو اپنی اس کی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں. اور اس نے ایک اور بات بھی بتائی, دیکھیے ہماری باڈی میں جو کیمیکلز ہیں نا جو ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں, اس میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی اس کو سائنٹیفک بنانے کے لیے, لیکن انٹرلیوکن کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس کی ورائٹی ہے انٹرلیوکن 1 سے لے کر اور 10 تک. لیکن انٹرلیوکن 1 اور انٹرلیوکن 6 اور TNF ٹیومر نیکروٹنگ فیکٹر الفا, یہ وہ کیمیکلز ہیں جو کہ اس مشروم میں بھی شامل ہیں, اور چونکہ وہ اس مشروم میں شامل ہیں اس لیے وہ فائٹ بیک کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا ثبوت ہے کہ یہ تمام ڈاکٹرز کے لیے, تمام دنیا سائنس کے لیے ایک ثبوت ہے کہ آئیے اور گینوڈرما کو آپ کی باڈی کی مدد کرنے دیجیے. ایکسٹینٹ یہاں تک کہ یہ ہے کہ اسٹرکچر سے لے کے اور پیتھوجن کی آرگنائزیشن تک, یعنی گینوڈرما پہلے تو اس ایلین کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ڈائگنوز کرتا ہے کہ کون سا سیل باڈی کے خلاف کام کر رہا ہے اور کون سا سیل باڈی کا ہوتے ہوئے بھی اپنے خلاف کام کر رہا ہے. یعنی بعض اوقات تک, جیسے میں مثال اس کی اکثر اپنے لوگوں کو دیتی ہوں کہ آپ اگر کوئی میڈ رکھتے اور وہ میڈ ہی گھر میں چوری کرنے لگ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ 5 روپے 10 روپے روزانہ چرا رہی ہے, آپ کہتے ہو ہم نے کھو دیا. بالکل اسی طرح آپ کے باڈی کے سیلز آپ کی باڈی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو ہم آٹو اینٹی باڈی کہتے ہیں. اور گینوڈرما آٹو اینٹی باڈیز کو بھی ریکگنائز کرتا ہے. دس از اے ہیوج میریکل کہ ایک غذا کا ایک سیل اپنے ایلین, اپنی باڈی کے ایلین کو ریکگنائز کرے, اس کو سرنڈر کرے, اور سرنڈر کرنے کے بعد اس کو آپ ہی کے باڈی کے ذریعے ختم کروا دے. یعنی یہ آرگنائز کرتا ہے. میں اس کو ایک کہانی کے طور پہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی چور داخل ہو جائے, اور وہ چور جو ہے اب چوری کرنے سے پہلے مسلح ہے, اور آپ کے پاس آپ کا گارڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں جو گن ہے اس کا نام ہے گینوڈرما. گارڈ جو ہے آپ کے گھر والوں کو اٹھائے گا, وہ آپ کے WBCs ہیں, اور یہ WBCs جو ہیں یہ جو جب اس کو سرنڈر کریں گے تو پھر وہ ایسے کیمیکلز ریلیز کریں گے کہ وہ اس چور کو یا تو گرفتار کریں یا مار ڈالیں. یہ اس طرح سے گینوڈرما آپ کی باڈی کے سیلز میں کام کرتا ہے. اور یہ پیٹرن جو ہے یہ پیتھوجن ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرن کہلاتا ہے, جس کو ہم PAMPS کہتے ہیں. اور اس کی سپورٹنگ انفارمیشن بھی دنیا نے یہ آج دے دی ہمیں کہ جو ہمارے یہ مائکروفیجز ہیں یہ کس طرح جا کے ہمارے وائرسز کو, ہمارے بیکٹیریا کو اور ہمارے کیمیکل پوائزنز کو ہماری باڈی سے صاف کرتے ہیں. اب گینوڈرما کا جو ایک اور خوبصورت کام, پین کلنگ ایفیکٹ. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی وائرسز جب بلڈ میں اٹیک کرتے ہیں تو باڈی میں سیویئر پین ہوتا ہے, پوری باڈی فٹیگ ہو جاتی, تھک جاتی. اور گینوڈرما کے اندر پین کلنگ ایفیکٹ اینٹی وائرل ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ موجود ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ وائرس آپ کے ٹکراتا بھی ہے تو اور گینوڈرما کی مقدار اتنی بڑھا دی جاتی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر لم نے کہا کہ کم از کم اس کو میگا تھراپی تک آپ لے کے جائیے, تو آپ اس کو جراثیم کو ہوتے ہوئے بھی آپ اسے فائٹ بیک کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. نیکسٹ سلائیڈ. یہ وہ ریفرنسز تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ گینوڈرما کے اندر فنگس کو مارنے کی پراپرٹیز بھی ہیں, گینوڈرما کے اندر سوجن ختم کرنے کی پراپرٹیز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹیو میڈیسن کا ایک ایسا حصہ بن گیا جس نے کیمسٹری میں اور جس میں کیمیکل پیتھوجینیسس میں اتنا بڑا رول ہمیں دکھا دیا کہ کوئی بھی جراثیم ہو, الرجی ہو, ایکزیما ہو, ٹیومر ہو, سوزش ہو, آرتھرائٹس ہو, کارڈیک ایشو ہو, بلڈ پریشر ہو, شوگر ہو, ہماری باڈی ان تمام ثبوتوں کے ساتھ فائٹ بیک کر سکتی ہے اگر اس کے خون میں گینوڈرما لوسیڈم شامل ہے. اب ہم کیسے اس کو استعمال کریں, یہ تو نیکسٹ سلائیڈ. آئی کین جسٹ فنش دس سلائیڈ اینڈ دین آئی ول کم بیک ٹو یو کوئکلی. نیکسٹ سلائیڈ. اس میں بھی دیکھیے انہوں نے ڈائٹری فائبرز کو امیون ریگولیشن کا ایک حصہ بتایا جو کہ گینوڈرما کا ایک ایمیننٹ حصہ ہے. اس کے اندر بیٹا گلوکین ہے, اور بیٹا گلوکین جو ہے وہ مالیکولر نیوٹریشن کا ایک حصہ ہے. اور بیٹا گلوکین یہ وہ کیمیکل تھا جو ہمیں امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے.
ट्राइटर्पीन्स के साथ साथ बीटा ग्लूकान एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट था जो गैनोडर्मा में मौजूद है और कैंसर सेल्स के खिलाफ भी काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इवन एलर्जिक राइनाइटिस जो कि हमें जुकाम की शक्ल में हमारे सामने आता है, अब चाहे वो कोविड-19 का जुकाम हो या वो नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, गैनोडर्मा दोनों में बीटा ग्लूकान की वजह से हमें हेल्प करता है। फिर अगर हम बीटा ग्लूकान की नेचुरल सोर्स की इनकी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को देखें तो कोई भी चीज जिस्म में जब दाखिल होती है तो वो सोजिश करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, और जब इन्फ्लेमेशन करती है तो हम कितनी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खाएंगे। याद रहे कि एज ए डॉक्टर आप और हम जानते हैं कि जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो सब मैदे के ऊपर कभी ना कभी असरअंदाज होती हैं, मैदे को कभी ना कभी तंग करती हैं, लेकिन ये वाहिद एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है जो कि मैदे को सपोर्ट करती है, मैदे की इवन मैदे की सूजन वरम को खत्म करती है, इल्ला ये कि वो उसको तकलीफ क्या दे। For the people who don't understand Hindi, this was just a brief introduction of Ganoderma as an anti-inflammatory agent, as an anti-allergic agent, and as a painkiller, and as a complete food supplement which can give you energy, immunity, synchronized effect, synergistic effect with all the other medications, and without any side effects on stomach or any other part of the body. Sometimes you have some reflections which are momentary and they can be relieved in a few weeks of low dosage. तो ये तमाम वो आइसोलेटेड स्टडीज हजारों में से चंद मैंने चुनी आपको बताने के लिए। और इसी तरह जब हम कैंसर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कैंसर के खिलाफ भी इसके अंदर बहुत सारा मवाद मौजूद था, जो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ मौजूद हैं जिन्होंने इसको कैंसर के से रिलीफ करने का जरिया बताया और कैंसर के खिलाफ जो मेडिकेशंस यूज होती हैं उनके साइड इफेक्ट से लड़ने का तरीका भी बताया। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। या नाउ दिस स्लाइड अगेन इट इज गिविंग अस abundant प्रूफ के जो फंक्शंस इसके इंटरल्यूकिन अल्फा और बीटा के ट्यूमर सेल्स के ऊपर हैं वो किस तरह कैरेक्टरिस्टिकली इम्यूनाइजेशन हमें देते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं, या जो पॉलीसैकेराइड्स इनके स्पोर्स में मौजूद है गैनोडर्मा में वो किस तरह से आरजीजी और जीएल शक्ल में हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाता है। साथ साथ पॉलीसैकेराइड के अंदर ब्लड कैंसर से के जीन एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करता है और साथ में तमाम वो इम्यून एनहांसिंग कैविटीज या जो प्रॉपर्टीज हमारे सेल्स की हैं उनको थेरेप्यूटिक लेवल तक लेके चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। या तो यानी एक तो ये कि जरासीम को आइडेंटिफाई करना, उसके खिलाफ काम करना, फिर बॉडी को उसके खिलाफ तैयार करना और फिर उस सेल्स को इम्प्रूव करते हुए रिपेयर कर देना, ये है गैनोडर्मा का काम। अब आप कैसे फायदा उठाएंगे? साबुन ले लें गैनोडर्मा का, 20 सेकंड तक उसे वॉश करें और वॉश करने का तरीका भी आपको पता है कि इसको किस तरीके से एक एक हिस्सा आपका हाथ का साफ होना चाहिए। और अच्छा ये तो सोप, क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जो है वो सोप से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उस सोप के अंदर कोरोना के मारने की तदबीर भी हो तो बाय वन गेट वन फ्री, यानी आपने हाथ को भी साफ कर लिया और वायरस को भी उससे मार दिया विद द प्रेजेंस ऑफ गैनोडर्मा। अब आइए टूथपेस्ट की तरफ। टूथपेस्ट में जो गैनोडर्मा है वो आपके गम्स की सेटिस्फेक्शन के लिए है और उसके साथ साथ आपकी गम्स की हार्मनी के लिए है। आपके जो बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं उसको साफ करेगा। अगर यहाँ सोजिश और दुखन है उससे गागल्स कर लीजिए। अगर नाक में थोड़ी सी इचिंग या बेचैनी है तो स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए और रेगुलरली आजकल तो मैं कहूँगी रात को सोते वक्त स्टीम लेके सोएं ताकि आप जब सुबह उठें तो आपके बॉडी की रेजिस्टेंस बेहतर हो। उस सोते में जो आपने जो जरासीम या अगर वायरस आपके अंदर गया तो उससे आप फाइट बैक सोते में भी कर सकें। शैम्पू से लेके और उसके साथ बॉडी फोम तक इसके अंदर गैनोडर्मा का आप फायदा उठा सकते हैं। ऑयल, जहाँ जहाँ ड्राई स्किन है आप ऑयल अप्लाई करें तो आपने उस, चूंकि वो भी खुद एंटीवायरल है, बाहर निकलते हुए आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस स्किन आपकी एक्सपोर्ट है उसके ऊपर आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका सिक्योरिटी सिस्टम वायरस के खिलाफ हो जाएगा। अब आइए आप खाने की तरफ।
आपकी इब्तिदा सुबह की कॉफी से, चाय से होती है। अगर उस चाय में वो तमाम प्रॉपर्टीज हों जो आपको ग़िज़ाइयत भी दे और आपको तवानाई भी दे और आपको वायरस के खिलाफ लड़ने का हौसला भी दें और उन सेल्स को बॉडी से भी साफ करें जो आपको वायरस की तरफ सेंसिटिव है। तो ये एक रेजिस्टेंस यहीं से शुरू हो गई। जब वो मैदे में पहुंचा तो मैदे के अंदर उसने अपनी सेहत को मैदे के सेल्स को सेहत दी। इसी तरह जब वो खून में गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, यानी वो ऑक्सीजन जो सेल्स के अंदर जाती है, फर्स्ट करें 1 ग्राम जा रही है तो गैनोडर्मा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की कैफियत दे सकता है उन रेड सेल्स को। और वो WBCs जो फाइट बैक कर रहे थे आम हालात में, गैनोडर्मा की वजह से और तवाना हो जाते हैं और मुसल्ला हो जाते हैं और अब वो रिपेयर भी कर सकते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में भी काम कर सकते हैं और आपने अपने सेल्स के मेटाबोलाइट जो अंदर से जो केमिकल पॉइजन आ रहे हैं और जो बाहर से पॉइजन आ रहे हैं उन दोनों से आपको बचा सकते हैं। और ये आपको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर इसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आपको ये बताए कि आप अब क्या काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक ही तरह पता लगेगा जब आपके माहौल में लोग बीमार हो रहे हैं और आप बीमार नहीं हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ गैनोडर्मा ऑन योर बॉडी। आप इसको कितना इस्तेमाल करें, डॉक्टर लिम की हिदायत के मुताबिक 15 ग्राम ऑफ गैनोडर्मा इज नीडेड विद एवरी डे, इट्स डेली रिक्वायरमेंट है। अब चाहें आप उसको ग़िज़ा में पकाते वक्त डाल दीजिए या आप उसे चाय के कॉफ़ी के तौर पे ले लीजिए या आप उसको सैलेड में डाल के दे लीजिए, या आपकी अपनी सहूलत है। एक और चीज़, मालूम नहीं आपके पास लेमोजी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन अगर आपके पास चाय है, लिंगजी चाय मौजूद है, तो उसमें अगर आपने नींबू डाल लिया तो विटामिन सी एक और इम्यून एजेंट है हमारा जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो वो आपको इम्यूनिटी डबल हो गई। यानी विटामिन सी, टी and Ganoderma, that is equal to Lemozy of DXN, which you can make at home also. तो ये आप डेली में गर्म पानी में डाल के और इसको आप बना के रख लें हमारी तरह। मैं तो इसको बना के रखती हूँ ताकि मैं हर वक्त वही गर्म पानी पीते रहूँ। तो ये आपका परसिस्टेंट इम्यूनाइजेशन है जो आपको गैनोडर्मा से मिल सकता है। अच्छा, अब आइए कि बच्चों को कैसे दिया जाए गैनोडर्मा, या उन खवातीन को कैसे दिया जाए जो चाय या कॉफी नहीं पीती हैं। आप उन्हें कोकोजी या चॉकलेट मिल्क में दे सकते हैं। गरम दूध में थोड़ा सा कोकोजी मिलाइए और सुबह दोपहर शाम 3 दफा 4 दफा इस्तेमाल कीजिए। इससे थोड़ा सा तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपका जिस्म जो है वो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी एक्वायर कर लेगा। डेली बेसिस पे हर 2-2 घंटे से हाथ धोना, गर्म पानी को पीना और अपने आप को आइसोलेट करना, अपने आप को कैरियर ना बनने देना। देखिए, अगर मुझे जरासीम है मेरे अंदर और मैं मजबूत हूँ, लेकिन मेरे अंदर जरासीम मौजूद हैं, मैं दूसरे को जरूर कैरी कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ हमारी आइसोलेशन काम आती है। और इसी तरह जब तक मैं अपने अंदरूनी जरासीम को ना मार लूँ, जो कि हमें कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग सकते हैं, उस वक्त तक मुझे अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए अगर मेरे इलाके में कोविड-19 मौजूद है। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, आप अपने इलाकों के हिसाब से, अपने ग़िज़ा के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से और अपने हालात के हिसाब से इस तमाम जो डोजेस को मोबिलाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों को आपने गैनोडर्मा कैसे देना है और किस उम्र में देना चाहिए। गैनोडर्मा शुरू के 3 महीने के बाद आप आराम से चॉकलेट मिल्क के साथ पानी में मिला के, दूध में मिला के उनके वजन के हिसाब से उनको दिया जा सकता है, जो उन्हें इम्यूनिटी देता है। माँ का दूध पर है जो बच्चा है वो तो इम्यूनाइज हो ही रहा है। और अब जब हम बात करेंगे स्पाइरुलिना की तो हम बताएंगे कि माँ के दूध की तरह हमारे पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी प्रोवाइडर है। तो किस्सा यहाँ पर गैनोडर्मा का ख़त्म नहीं होता। किस्सा यहाँ पर गैनोडर्मा के बारे में शुरू होता है कि ये तो सिर्फ इम्यूनिटी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज,
मूड स्विंग्स, आप घरों में बैठे हुए हैं, आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार हैं, तो आपको अब साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी चाहिए। अब आपको सोशल इम्यूनिटी भी चाहिए थी, तो अब आपको साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन भी चाहिए। यानी अब आपको डिप्रेशन से बचना है, अपने आप को पॉजिटिव लेके चलना है, और इस क्वारंटीन को या इस आइसोलेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, अपने आप को सही रखना है। मैं जैसे बार बार बात करती हूँ कि हम लोग 3 हलकों में बटे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। वो लोग हैं जो सिर्फ डर के मारे बैठे हुए हैं कि अब पता नहीं अब हमें कोरोना हो गया है या होने वाला है, तो बस अब हमारी जिंदगी खत्म है, क्या होगा, और स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बढ़ता जा रहा है। दूसरा ग्रुप वो है जो कि है तो खौफजदा लेकिन थोड़े से बोल्ड हैं, अभी बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूरी तौर पर नॉर्मल नहीं कर पाए और अपने आप को इफेक्टिव नहीं कर पाए। तीसरा वो छोटा ग्रुप है जो 10 to 15% है, जिनमें आप और हम शामिल हैं, कि हम वो लड़ाई, हम वो जिहाद में निकले हुए हैं कि हम अपने उस वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करें उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो एंजाइटी का शिकार ना हो पाए, उनको सही तजवीज दें, अपने आप को लर्निंग कर्व में लेके आए, समझें, पढ़ें, पढ़ाएं, अपनी वो कमियों को दूर करें जो हमने अपने काम के सिलसिले से अपने खानदान को दे दी, अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें, अपनी दोस्तियां मजबूत करें और एक दूसरे के काम आए। ये वो वक्त है जिसमें आप इसको चौमुखी चारों कॉर्नर से ये जंग आप जीत सकते हैं, कि अगर आपने अपना स्टेमिना इंप्रूव किया, आपने अपना रेजिस्टेंस इंप्रूव किया, पर्सनालिटी को ग्रूम किया और स्ट्रेस बस्टर बन गए, तो आप अपने लिए भी और अपने माशरे के लिए भी एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं, और जाहिर है एक बहुत बड़ा फरीजा भी है और नेक काम। तो गैनोडर्मा के हवाले से तो स्ट्रेस बस्टर आप जानते हैं कि एंजाइटी को भी ख़त्म करता है, वो केमिकल्स को रिलीज करता है एंड इट मेक्स यू हैप्पी, और हैप्पी मोड में जाने के बाद बॉडी भी इम्यून होती है। एक और हिदायत आप लोगों के लिए कि नींद बहुत ज़रूरी है, और सही वक्त पर नींद, यानी दिन में ना सोएं, रात की नींद जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। पानी की कसीर मिकदार, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे ग़िज़ा और एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें, और धूप, ये 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के बेस्ट डॉक्टर को काम करने का मौका देती हैं। तो आपकी बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर, यूज इट एंड स्ट्रेंथन इट विद गैनोडर्मा। तो ये बात तो हो गई आपकी गैनोडर्मा की। आइए चले थोड़ा सा अगले प्रोडक्ट के बारे में जब जानते हैं, और उसका नाम है स्पिरुलिना। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट, कीप गोइंग। या स्पिरुलिना, एज द वर्ड सजेस्ट, स्पाइरल शेप, एक ऐसा माइक्रो एल्गी जिसको दुनिया ने बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड माना। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी बहुत सुन चुके हैं हम सब लोगों से, और ऑलरेडी पबमेड में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इसके जो ये सोर्सेज हैं, spirulinasource.com, फैमिली हेल्थ न्यूज़, और बहुत सारे ये वेबसाइट्स हैं जो स्पाइरुलिना पे तमाम सवालात का आपको जवाब दे सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह मियां ने कूजे में दरिया बंद किया है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसके साथ एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ पानी और ये ग़िज़ा लेके महीनों स्पेस में जिंदा रहते हैं, और जब नासा के साइंटिस्ट इसको अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेहतर समझते हैं, तो दुनिया में एक आम आदमी के लिए कितनी सिक्योरिटी इसके अंदर होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैटी एसिड्स, गामा ल्यूनिक एसिड, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी आर्थराइटिक और एंटी यानी हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट के तौर पर ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस में, इन तमाम चीज़ों में स्पाइरुलिना का रोल देखा गया। तो जब आप घर पे बैठे हुए हैं, अब आपके पास आपकी मर्जी का खाना भी नहीं, तो आप अपने आप को कुव्वत दे सकते हैं। स्पाइरुलिना की 10 से 20 गोलियां, डॉक्टर साहब तो कहते हैं 60 टैबलेट्स आप डेली यूज करें, तो आपको कोरोना वायरस नहीं टच कर सकता, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। देखिए, स्पाइरुलिना प्रोटीन है, और प्रोटीन आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन है। आपको जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, तवानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए,
اور زندگی کے لیے پروٹین چاہیے. جب تک اسینشیل امینو ایسڈ آپ کی باڈی میں نہیں ہے اس وقت تک آپ زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے. تو اسپائرلینا کے امینو ایسڈس ہوں یا اسینشیل فیٹی ایسڈس ہوں وہ سیلز کی دیوار سے لے کے سیلز کی تمام مشینری، وہ مشینری جو نیوکلیس کے اندر ہے، آر این اے، ڈی این اے، وہ مشینری جو باہر پیکیجنگ کر رہی ہے، گولجی ایپریٹس، مائٹوکونڈریا، وہ مشینری جو سائٹوپلازم میں آرگینلز لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ دیواریں جو سیل کو ایک شکل دے رہی ہیں، سب کے سب پروٹین سے بنے ہیں. اور اگر آپ کے پاس گڈ کوالٹی پروٹین نہیں ہے، بالکل اسی طرح کہ عمارت بنانے کے لیے اگر کوالٹی کی مٹی اور سیمنٹ نہیں ہے تو عمارت بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی. تو یور باڈی ہیز ٹو بی made by strong proteins so that it can sustain the external insults on the body. یعنی بیرونی خطرے جو ہوا، پانی، دوا، وائرس، بیکٹیریا، عادتیں اور غذا، یہ تمام چیزیں جب آپ کے سیلز کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور آپ کے سیلز کی دیواریں کمزور ہوں گی تو آپ جلدی بیمار پڑ جائیں گے. تو اسپائرلینا آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے by improving these cells. Two type of cells, one which are making the new cells. کون سے cells؟ آپ کے وہ ٹی لیمفوسائٹس اور بی لیمفوسائٹس، یہ وہ سیلز ہیں جو بون سے آتے ہیں، تھائمس سے آتے ہیں، لمف نوڈ سے آتے ہیں اور آپ کی وہ پولیس فورس بناتے ہیں جو بیماری سے لڑ سکتی ہے. تو جب اسٹرکچر ہی آپ کا کمزور ہوگا تو بناوٹ بھی کمزور ہوگی. آپ کی پولیس فورس بھی اگر کمزور ہے، بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ میں آپ کے گھر میں گارڈ کھڑا کر دوں اور وہ خود بیچارہ بیمار ہو، ہل رہا ہو، گن پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کب کپا رہے ہو، وہ آپ کی کیا حفاظت کرے گا؟ بالکل اسی طرح آپ کی باڈی کے سیلز اگر مضبوط ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو اسپائرلینا جا کے ان باڈی کے سیلز کو اچھی طاقت دیتا ہے، اچھی بناوٹ دیتا ہے، وہ ریسپٹرز اسٹرانگ کرتا ہے جو کہ فائٹ بیک کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو گرو کر سکتے ہیں. اب کوئی بچہ بڑا ہونا اس کی مقدر ہے، اگر وہ اس کو صحیح غذا پروٹین نہیں ملا تو پروٹین کیلوری مال نیوٹریشن کی طرف گیا، وہ زیادہ بیمار ہوگا. وہ مائیں جو پروٹین کم استعمال کرتی ہیں وہ زیادہ بیمار ہوں گی. وہ بزرگ جن کا کھانا کم ہے وہ زیادہ بیمار ہوں گے. تو کون کون کینڈیڈیٹ بن گیا اسپائرلینا کا؟ وہ ماں جس نے ابھی پیدا نہیں کیا اس کو بھی اسپائرلینا چاہیے، اور وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کو بھی اسپائرلینا چاہیے، اور وہ ماں جو اب ماں بن چکی ہے اس کو بھی اسپائرلینا چاہیے، وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی اسپائرلینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر گاما لینولک ایسڈ ہے جو کہ دنیا کا کسی فوڈ میں موجود نہیں. اس میں B1 B6 B12 کی اتنی خاطر میں موجود ہے، اتنا اماؤنٹ میں کہ آپ کو اس کو لینے کے بعد کوئی وائٹامن لینے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر وہ وائٹامن اے ہے جو آپ کو نائٹ بلائنڈنس سے بچا سکتا ہے. اس کے اندر وہ وائٹامنز ہیں جو آپ کی اسکن کی انٹیگریٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. پروٹینز کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو ہارمونز کی یاد آتی ہے، آپ کو انزائمز کی یاد آتی ہے. سیلز کے ساتھ ساتھ سیلز کو بنانے، ان کے اوپر محنت کرنے کے لیے جو انزائمز اور ہارمونز ہیں وہ بھی پروٹینز ہیں. تو یہ پروٹینز آپ کو اسپائرلینا بغیر اس محنت کے کہ اگر آپ کو کھا کے خون میں جائے گی یہ منہ سے ہی ابزارب ہو جاتا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ابزارب ہو جاتا ہے منہ سے. تو بچوں کو اگر دینا ہے تو پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں، سیریل دے سکتے ہیں، دہی میں دے سکتے ہیں، سلاد میں دے سکتے ہیں، اور تو اور میں نے لوگوں کو اس کو بیسن میں ملا کے اس کے پکوڑے بناتے بھی دیکھا. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ سینسیٹیو ہیں اپنے صحت کے بارے میں، جو لوگ سینسیٹیو ہیں اپنی سیکیورٹی کے بارے میں، وہ اسپائرلینا ساری عمر استعمال کر سکتے ہیں. اور ویٹ ریڈکشن کے لیے، ویٹ امپروومنٹ کے لیے، مینٹیننس آف گڈ ایج کے لیے، مینٹیننس آف مینٹل انٹیگریٹی کے لیے، مینٹیننس آف نروس کے لیے، مینٹیننس آف بلڈ ویسلز کے لیے. یعنی اگر میں اسپائرلینا پہ بولنا چاہوں تو آج جو مجھے میرا خیال ہے کہ میں رات بھر بیٹھ سکتی ہوں یہاں، اتنی زیادہ انفارمیشن اسپائرلینا پہ موجود. اور پروفیسر رتنا مجھ سے ایگری کریں گی کہ یہ ایک وہ چیز تھی جس نے ہمارے ان بچوں کو ان بچوں کو توانائی دی جو آئے نہیں ابھی دنیا میں،
اور ان बच्चियों का खून बढ़ाया जो आने वाले दिनों में सिर्फ 1 सेकंड के अंदर एक औरत के मरने का सबब खून की कमी होती है। यानी जैसे एक प्रोफेसर का कहना है कि अगर मैं एक दफा ब्लिंक करूं तो पूरी दुनिया में एक औरत मर जाती है खून की कमी से। तो खून की कमी के लिए ग्रीन ब्लड का नाम दे दिया गया स्पाइरुलिना का, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मिकदार मौजूद है, इसके अंदर प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना, और हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा आपको सपोर्ट मिल जाती है स्पाइरुलिना से। तो जो लोग हीमोग्लोबिन इंप्रूव रखेंगे उनका रेजिस्टेंस इंप्रूव रहता है, और जिनकी हीमोग्लोबिन अच्छी होती है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बेहतर होती है। जब ऑक्सीजन बेहतर होगी तो पीएच बेहतर होगा, जब पीएच बेहतर होगा, एल्कलाइन होगा, तो आप कैंसर तक से लड़ जाएंगे। तो मैंने इन तमाम चीजों को एक मुख्तसर तौर पर आप तक पेश किया ताकि आप इसको समझ सकें कि स्पाइरुलिना की हमें किस हद तक जरूरत है। तो डेली अगर आप 10 से 12 स्पाइरुलिना लें तो कोविड-19 से लड़ सकते हैं। कोविड-19 से हर बच्चा लड़ सकता है, हर बूढ़ा लड़ सकता है, वो जो खाना खाता हो या नहीं खाता हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको तौफीक दे स्पाइरुलिना खाने की। लेट मी मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज योगी, नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, next slide. Next. Now, how does this affect the immune system? No, go back. तो स्पाइरुलिना को खत्म करते हुए सिर्फ इस बात को याद दहानी कराऊंगी कि स्पाइरुलिना कुव्वत मुदाफियत को तो इम्प्रूव करता है WBC के बनाने के लिए, लेकिन रेट ऑफ RBC, रेट ऑफ रेड सेल की जो डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ाता है, इसीलिए ये एनीमिया से लड़ता है। अंदरूनी कुव्वत मुदाफियत और स्पेसिफिक इम्यूनिटी फॉर डिजीजेस को एनहांस करता है। नेचुरल किलर सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर है उनको बनाता है। मैक्रोफेजेस जो बड़े WBCs हैं उनमें हेल्प करता है। एंटीबॉडीज बनाता है और आपके टी सेल्स को इंप्रूव करता है। दिस इज हाउ इट गिव्स यू इम्यूनिटी ऑन इट्स इंटरनल रोल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास तीसरा सिपाही जो रिएक्शन के पास तीसरा कर्नल और जनरल जो मौजूद है वो है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। कॉर्डिसेप्स दुनिया का बहुत ही पुराना मेडिसिनल फंगस जिसको हिमालयाज में से उठाया गया और दुनिया ने इसको बेस्ट स्टेमिना प्रोड्यूसिंग कैटरपिलर मशरूम का नाम दिया। और अब लोग ये कहते हैं कि ये वो वाहिद मशरूम है जो ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी के ऊपर काम करता है। और जब ब्लड वेसल साउंड हो तो क्या ऑक्सीजन और क्या आपकी इम्यूनिटी, क्या आपके गुर्दे, क्या आपका जिगर, सारे बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, इन सब के अंदर अगर कोई काम सही रख सकता है या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करता है वो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड, उन्होंने, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, उनको एंशिएंट चाइनीज हर्बल मेडिसिन ने साइंटिफिकली प्रूव किया और उन्होंने ये कहा कि इसकी यूटिलाइजेशन से न सिर्फ आप बच्चे से लेके बड़े तक स्टेमिना देते हैं बल्कि माइक्रो सर्कुलेशन के इम्प्रूवमेंट से हार्ट को भी सेव करते हैं, लंग्स को भी सेव करते हैं, किडनी को भी सेव करते हैं और ब्रेन को भी सेव करते हैं। तो इससे बेहतर ग़िज़ा हमारी क्या होगी कि जो हमें बारीक सी नालियों से लेके और मेजर ऑर्गन्स तक हमें सपोर्ट देती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च ने ये एक मोनोग्राफ जारी किया जिसने ये कहा कि कॉर्डिसेप्स बिल्कुल सेफ है और जो डोजेज हमने आप जो बताते हैं 4 से 6 टैबलेट्स या 10 टैबलेट्स डेली, ये बिल्कुल सेफेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है और एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशरूम है जिसको लोग 4000 साल से इस्तेमाल करते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर तो हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी के साथ साथ सिक्योरिटी भी हो तो फिर ये तीसरा जनरल भी हमारे साथ काम करता है। कॉर्डिसेप्स की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि लंग्स के जो बारीक शरियाने जहाँ से खून
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लेता है, वहां पर ये ऑक्सीजन की फराहमी और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट और उन सब की सूजन वरम को भी कम करता है, बना रहा है, वहां पे सेफ है। यानी किडनी फेलियर में आप कॉर्डिसेप्स बेफिक्र होकर दे सकते हैं ताकि आप किडनी को महफूज कर सकें। ब्रेन में भी सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट को इंटेग्रिटी देता है, तो आपकी मेमोरी बेहतर होती है, रिकग्निशन में बेहतर होती है, और ब्रेन से ही हमारा पूरी बॉडी का फंक्शन चलता है। तो ब्रेन के फंक्शन अगर बेहतर हैं तो फिर हमारा बॉडी का फंक्शन भी बेहतर है। और तो और चूंकि मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बंदा हूँ, तो मैं अपने उन मरीजों को जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं उनको ये हिदायत करना चाहूंगी कि ये जो 2 महीने 3 महीने हैं, इस वक्त आप प्रेगनेंसी की कोई कोशिश ना करें, लेकिन इसके बाद कॉर्डिसेप्स को आप इम्प्रूवमेंट इन योर गमीट्स, चाहे वो एग्स हो, चाहे वो स्पर्म्स हो, चाहे वो डिजायर्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजेशन हो, उसमें भी कॉर्डिसेप्स हेल्प करता है। तो जो कॉम्बिनेशन ऋषि गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, मोरेंजी और कॉर्डिसेप्स का है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर सब फर्टिलिटी आल्सो ड्यू टू डिफिशियंसीज, प्रोवाइडेड वी नो वेयर द फॉल्ट इज। इसको आप डॉक्टर्स की दवाओं के साथ, इलाज के साथ अपने आप को और अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। चौथा सबूत हमारे पास नोनी जूस, मोरिंडा सिट्रोफोलिया या मोरेंजाइम। ये वो प्रोडक्ट है हमारा जिसने हेटी आइलैंड से निकल कर जब हमारे ऑर्गेनिकली कल्चर करने के बाद हमारे हाथों में आया, तो पता चला इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तकरीबन 115 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमें ये मजबूर करते हैं कि इसे हम रेगुलर यूज करें, क्योंकि ये स्किन से लेके और बोन तक हमें हेल्प करता है रिपेयर में, हमें हेल्प करता है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में, और हमें हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ब्रेन डैमेज से लेकर जॉइंट्स के डैमेज तक ये हमें हेल्प करता है। तो जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हम सेल्स की रिपेयर की बात करते हैं, हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करते हैं, तो वहाँ हमें मोरिंडा सिट्रोफोलिया कॉम्बिनेशन विद आरजीजीएल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हमें इम्प्रूवमेंट इन इम्यूनिटी दे सकता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, तो ये एक अच्छा हमारे पास हथियार है जो कि हमें इम्प्रूव कर सकता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, जब भी हमारा खाना पीना हजम होगा, जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वो रेफरेंसेस हैं जो आप मोरिंडा सिट्रोफोलिया के जरिए से आप पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके 2 चमचे से लेके 10 चमचे तक पूरी बोतल भी पी जा सकती है, नो साइड इफेक्ट्स, और डेली बेसिस पे लेने से आपको नज़ला, जुकाम, चेस्ट के इन्फ्लेमेशन और जॉइंट के इन्फ्लेमेशन, ब्रेन के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये तमाम रेफरेंसेस लाइन्स मेन के बारे में सिर्फ 1 मिनट लूंगी। ये लाइन्स मेन वो मशरूम है जो वाइट लाइन के बालों के गुच्छे से तशबीह दिया गया, और इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ये हमारे ब्रेन को मजबूत रखता है। वो आसाबी बीमार लोग जो कोरोना में इफेक्टेड हैं और जिनके आसाब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पेन के जरिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको लाइन्स में फायदा दे सकता है। और ये तमाम एविडेंसेस हैं जो हमें उसकी तरफ ले जा सकती हैं और हम उसको समझ सकते हैं। और रेगुलरली 4 से 6 टैबलेट्स लाइन्स में की लेने से हम वहाँ पे भी कोविड-19 से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास टी ट्री क्रीम का एक खजाना, ये वो टी ट्री क्रीम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टी ट्री क्रीम हमारे पास स्किन का एक ऐसा अल्लाह का तोहफा जिसने ऑयल की शक्ल में मेलिलोसा अल्टरनिफोलिया की शक्ल में हमें मिला, और 4-5 हजार साल से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टी ट्री ऑयल जो है हमारे पास क्रीम की शक्ल में है, इसकी भी तकरीबन 500 से ज्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं जो मैं सिर्फ 180 पढ़ सकी।
उसमें से इम्यूनोमॉड्यूलेशन का फैक्टर मुझे मिला, वायरस के खिलाफ लड़ने की सलाहियत मिली, फंगस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, सैनिटाइजर के तौर पर बेहतरीन। जितने भी अल्कोहल सैनिटाइजर्स हैं, अल्कोहल इटसेल्फ इज सेंसिटिव फॉर द स्किन। तो अगर आप टी ट्री क्रीम को एज ए सैनिटाइजर यूज करते हैं, एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, तो भी आप कोविड-19 से लड़ सकते हैं। बहुत सारे इसके फवायद हैं, इसको आप इनके आर्टिकल्स में देख सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के लिए इसकी स्टिमुलेशन, इसकी लोकल एप्लीकेशन आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो लेमोजी जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में अवेलेबल है, हो सकता है इंडिया में ना हो, पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन वही है जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल आप रेगुलरली लेमोजी टी का इस्तेमाल कीजिए एंड यू कैन फाइट बैक विद वायरसेस। नेक्स्ट एलोवेरा, अगेन एलोवेरा सीरीज आपके पास मौजूद है, जिस तरह चाहें आप एलोवेरा को इस्तेमाल करें। और ये खजाना जो है हमारे पास न सिर्फ कोविड के लिए है, हर जरासीम के लिए आपके पास हथियार है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरा पैगाम यही है कि जो कुछ हो गया सो हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखें, आगे चलें, प्रिवेंशन करें, और जो हो गए बीमार उनको उससे निकालें। हमारे इन तमाम प्रोडक्ट्स की मदद से भी निकाल सकते हैं और बाकी खानदान को महफूज कर सकते हैं। मैं अल्लाह आपको हेल्प करे इन तमाम चीज़ों में और इस जिहाद में हम सब मिल के लड़ेंगे और दुनिया को इससे निकाल के रहेंगे। मेरी ये दुआ है कि मेरे तमाम हिंदुस्तानी बहन भाई, पाकिस्तानी बहन भाई और पूरी दुनिया की ग्लोबल फैमिली ऑफ DXN के प्लेटफॉर्म से इतना फ़ायदा उठाए और दुनिया को बता दे कि बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर एंड DXN प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपके कोई सवालात हों तो प्लीज़। Thank you very much, Dr. ji. Thank you very much. Good morning, doctor. Thank you very much, Dr. ji. I hope. Thank you.